اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 سے ہم نے آج تلاوت سنی ہے۔ یہ 2 رکوع ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ آیات ہیں۔ پچھلی جو ہم نے رکوع پڑھے ہیں اس میں وہ جو اللہ پاک کا احکامات تھے کہ دارالکفر سے دارالاسلام میں ہجرت نہ کرنے والوں کے متعلق جو اللہ پاک کے احکامات تھے وہ پورے 2 رکوع میں پیچھے وہ ڈسکس ہوئے، تو وہی موضوع ابھی بھی جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین توفاہم الملائکۃ، ان الذین بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکۃ، توفا یہ ہم نے لفظ پڑھا ہوا ہے، متوفی کا بھی پڑھا ہے، وفا بھی پڑھا ہے۔ وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، بھی وفا کرنا، کسی کے ساتھ وفا کرنا۔ توفا کا مطلب ہوتا ہے پورے کا پورا لے لینا۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ہم نے وہاں پہ ترجمہ کیا تھا، متوفی کا۔ تو توفا کا مطلب رہتا ہے کہ پورے کا پورا لے لینا، جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ موت آ جانا، بندہ کا پورا جسم بھی چلا گیا، روح بھی چلی گئی، چلے گئے، توفا۔ اس لیے موت، وفات اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ تو ان الذین بے شک وہ توفاہم، ان کو موت آتی ہے۔ اب ہم ترجمہ یہ کر لیتے ہیں، اس کو موت آتی ہے، توفاہم ان کو موت دیتے ہیں، الملائکہ، ملائکہ موت دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیسے ہیں؟ لوگوں کی آگے حال بیان ہوا ہے، لوگوں کا حال بیان ہوا۔ ان الذین، یہ کون لوگ؟ ظالمی انفسہم، یہ ان کا حال ہے۔ حال ہم کہیں عربی تھوڑی گرامر کے، حال جو اسم ہوتا ہے، اسم وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ ظالمین ہے، اصل ظالمون ہے، ظلم کرنے والے، ظالمون ہے۔ یہاں ظالمین ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ حال ہے نا، حال جب اس میں حال جب ہے تو اس میں نصب میں چلا جاتا ہے برحال۔ تو یہ جو آگے ترکیب ہے ظالمی انفسہم، یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی ہوتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ ظالمی انفسہم، اپنی جانوں کے ظلم کرنے والے، ترجمہ ویسے کریں تو ایسے بنتا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، لیکن یہ مرکب اضافی کی ترکیب ہے، ظالمی انفسہم۔ یہ ظالمون سے ظالمی اس لیے بنا ہے کہ یہ حال ہے، حال نصب میں چلا جاتا ہے، ظالمون سے ظالمین ہو جاتا ہے۔ جب اس کو مرکب اضافی بناتے ہیں نون بھی گر جاتا ہے۔ مرکب اضافی میں ہر جگہ نون گرتا ہے، مضاف کا نون گرتا ہے، اور مضاف الیہ کی پکی ہے۔ یہ بہت دفعہ بات کی کہ کسی اسم کے زیر لگنے کی، حالت جر میں جانے کی صرف 2 وجوہات ہیں، یا اس کے پیچھے حرف جر ہوگا، من، فی، علا، یہ جو حرف جر ہوگا، یا وہ مضاف الیہ ہوگا۔ بیت اللہ ہے، یہ اللہ ہے کے نیچے زیر اس لیے آئی ہے کہ یہ مرکب۔ تو یہ انفسہم، تو یہ مجھے ذرا کنفیوز ہو رہا تھا، لیکن غور کیا تو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ مرکب اضافی ہے، اس لیے انفسہم، ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ ملائکہ کی بھی بات کر لیں، موت تو ملک الموت کہتے ہیں ہم، وہ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن عربی میں علماء نے لکھا ہوا ہے، عربی میں جیسے اردو میں بھی ہے کہ پلورل کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے بہت سی جگہ، ایک کے لیے بھی پلورل، جس کو رائل پلورل ہم بولتے ہیں، ہم نے یہ کہا ہے نا۔ تو عربی میں اور بھی کئی جگہ پہ ہیں کہ ملائکہ ہے، ملک ہے۔ جیسے وہ عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو جب وہ فرشتے کہتے ہیں نا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک، وہ بہت سے فرشتوں نے نہیں کہا، ایک فرشتے نے، وہ جہاں پہ ان کو کہا ایک ہی فرشتے۔ یا حضرت زکریا کو جب آواز آتی ہے نا کہ وہ کھڑے تھے تو ان کو فرشتوں نے آواز دی، وہ جب محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ تمہیں بیٹا عطا ہوگا، وہ ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے نا، تو وہ بھی ملائکہ ہے لفظ، آواز اب اس کو غیب سے ایک آواز آئی، کسی فرشتے کی آواز ہوگی۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے، حضرت امین احسن اسرائیل نے بھی لکھا ہے کہ یہ بڑا عربی کا قاعدہ ہے کہ پلورل استعمال کیا جاتا ہے، کہ فرشتے جب جان نکالے آتے ہیں، حالانکہ ہے فرشتہ ایک ہی ہے، واحد ہے، بس
ये कोई ज़्यादा अहम बात नहीं है, लेकिन यहाँ मलाइका का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो बेशक उन लोगों को जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, अब ये ज़ालिमी अनफुसहिम, जब उनकी मौत आती है, फरिश्ते उनको मौत देते हैं, कालू, तो ये फरिश्ते उनको कहते हैं, फीमा कुंतुम, फी में माँ क्या, ये माँ है, मीम अलिफ अलिफ वाला माँ है, लेकिन इसको ऐसे लिखा जाता है फी माँ कुंतुम है, पढ़े इसको फीमा ही पढ़ते हैं। नहीं, वो अगर कालू लगा हुआ है, वो मलाइका के, हाँ जी, मलाइका के साथ जमा का सीगा है, जी जी, हाँ जमा का सीगा है, जमा का सीगा इस्तेमाल होगा। एक फरिश्ता होता तो फिर तो काला होता। नहीं नहीं, यहाँ एक फरिश्ता नहीं है, मलाइका लिखा हुआ है, ये प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल का वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल होगा। लेकिन ये है कि इससे ये कन्फ्यूजन ना हो कि बहुत से फरिश्ते आवाज़ दे रहे हैं, मौत देने वाले हैं। हमें आमतौर पर कॉन्सेप्ट तो ये है एक ही फरिश्ता, क्या पता फरिश्ते और भी ज़्यादा हूँ, लेकिन हमारा जनरल कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि मलकुल मौत है, इजराइल उसका नाम है, वो मलकुल मौत है। तो ये मलाइका एक ही फरिश्ते की आवाज़ को जमा के सीगे में इस्तेमाल, वो पीछे भी मिसाल दी हुई है। तो ये मलाइका लगा हुआ है तो कालू लगेगा, फिर कालू लगेगा बहरहाल। तो कालू, उन्होंने फरिश्तों ने क्या कहते हैं उनको, इनकी ये जुल्म कर, इन्होंने जुल्म कौन सा किया है ये आगे वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन पीछे हम पढ़ के आगे हैं। ये ज़ालिमी अनफुसहिम, उन्होंने अपने जानों पर जुल्म क्या किया है, हिजरत नहीं की है, आगे जिक्र आ रहा है। वही जो हिजरत ना करने वाले जो लोग हैं ना, उनको जब मौत आती है, उनको जब फरिश्ते लेने आते हैं, उनको मौत आने है, तो उनसे पूछते हैं, कालू फीमा कुन तुम किन हालात में पड़े हुए रहे हो, फीमा कुन तुम थे, फीमा किस चीज़ में, तुम किस चीज़, किन कामों में तुम पड़े रहे हो, कि तुम इधर मक्का में पड़े हुए हो या इर्द गिर्द काफरों के मैयत में तुम पड़े हुए, अपनी कौम में पड़े हुए, तुम किन कामों में पड़े रहे हो कि तुमने हिजरत नहीं की। यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन पीछे हमारा वो सियाक में चला हुआ आ रहा है ना, कैसे आ रहा है सियाक में सबाक, इसका ऐसे ही है। तो तुम किन कामों में पड़े हुए थे कि तुमने, अब ये असल में ये फाइनल वार्निंग है सारे मुसलमानों के लिए कि ये हालात होंगे कि जब तुम्हें मौत आएगी ना, जो ये किनको सुनाया जा रहा है, ये जो मुसलमान जिंदा हैं उनको सुनाया जा रहा है ना, जिन्होंने हिजरत नहीं की उन्हीं को सुनाया जा रहा है, उनकी इस्लाह के लिए ये सारा काम हो रहा है ना। उनकी फाइनल वार्निंग हो रही है उनको कि जब तुम्हें मौत आएगी ना, तो फिर फरिश्ते तुमसे पूछेंगे ना कि तुम किन काम में पड़ेगो, तो वो क्या कहते हैं, कालू, ये फिर ये लोग क्या कहें, कुन्ना, हम थे, काना यकूनो, कुन्ना मुस्तदअफीन फिल अर्द, हम जमीन में बड़े ही कमज़ोर लोग थे। ये मुस्तदअफीन का लफ्ज़ हमने पढ़ा हुआ है, ज़ाद ऐन फे ज़ऊफ़ा, जैसे कमज़ोरी जिसको कहते हैं, इस्तदअफ़ा उससे बनता है कि किसी दूसरे को कमज़ोर जानना, वैसे ज़ऊफ़ा कमज़ोर होना है ना, इस्तदअफ़ा जब कहते हैं किसी को कमज़ोर जानना, इस्तदअफ़ा यस्तज़िफ़ु, यस्तज़िफ़ु कमज़ोर, जो कमज़ोर जानता है, उससे जब फ़ाइल बनेगा तो उसके बने मुस्तदइफ़ बनेगा, यस्तदइफ़ से बनता है ना, मीम लगे, यस्तदइफ़ ये कई दफ़ा पहले मुज़ारे से बनता है, यस्तदइफ़ों से ये को हटाएंगे, मीम पेश लगाएंगे, आखिर में दो पेश लगा देंगे, या मुस्तदइफ़, मुस्तदइफ़ कमज़ोर जानने वाला, किसी दूसरे को कमज़ोर समझने वाला। यहाँ क्या है, मुस्तदअफ़, मुस्तदअफ़ कौन होता है, जो कमज़ोर होते हैं, जो कमज़ोर बने हुए, जो कमज़ोर हैं, कमज़ोर जानने वाला, और जिनको कमज़ोर जाना जा रहा है वो मुस्तदअफ़ होता है, मुस्तदअफ़। कुन्ना मुस्तदअफ़ीना, हम तो बड़े कमज़ोर थे, हम तो बड़े ज़मीन में बड़े कमज़ोर थे कि हम तो कुछ हम सब नहीं कर सकते थे, ये जो हिजरत है हम इस काबिल नहीं थे, वो ये कहना चाहते हैं। फरिश्ते उनको कहेंगे, कालू, फरिश्ते उनको कहेंगे, अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन, अलम तकुन, क्वेश्चन मार्क है, क्या नहीं, लम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन, लम तकुन, तकुन कहाँ से आया, काना यकूनो से आया, अर्ज के लिए आया तो अर्ज मुअन्नस है, तो इसलिए तकूनो बनता है, तकूनो, लम लगने से तकूनो, तकुन में कन्वर्ट हुआ है ना, जैसे आखिर उसको साखन करेंगे वाव गिरानी पड़ेगी, पहले भी कई दफा कहा है। तो कालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वास, क्या नहीं थी जमीन इतनी वसी, अल्लाह की वसी, तुम्हारे लिए इतनी वसी जमीन नहीं थी कि तुम कहते हो हम बड़े कमज़ोर पड़े हुए थे, उधर पड़े हुए, तुम्हारे लिए इतनी वसी नहीं थी, फतुहाजिरू फीहा, तुम वहाँ उस ज़मीन में, उसमें इतनी वसी ज़मीन में हिजरत करके चले जाते,
ये तुम अपने कमजोरी ज़ाहिर कर रहे हो कि हम बड़े कमज़ोर थे। इतनी वसी ज़मीन अल्लाह की पड़ी हुई थी, तुमने हिजरत, मिसाल के तौर पर वो असहाब कहफ ने क्या किया? उनकी हालात नहीं थी कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गए वसी ज़मीन में, कहीं उनको ठिकाना भी नहीं मिला, एक गार में चले गए, निकल गए ना। उन्होंने अपने ईमान बचाने के लिए, कोई उनसे ज्यादा मुस्तदफ कौन होगा और कमजोर कौन होगा? असहाब। तो तुम्हारे लिए इतनी वसी जमीन पड़ी हुई थी, तुम वहां नहीं जा सकते थे? जा सकते थे। कालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरू फीहा, तुम उसमें हिजरत कर जाते। तो ये अल्लाह पाक की फाइनल वार्निंग जो कह रहा है ना, ये हालत होगी कि अगर हिजरत ना करने वालों को जब मौत आएगी, उन्हें फरिश्ते कहेंगे कि तुम किस हालत में, उनकी रूह के लेके जा रहे होंगे, या उनकी जो उस वक्त हालत हुई कि कैसी जिंदगी तुमने गुजारी है, तुमने हिजरत क्यों नहीं की? तो वो हिजरत तो उन्होंने इसलिए नहीं की कि अपने कारोबार थे और अपने बिजनेस था, अपना जो भी था, अपने कई ज़रूरियात थी। आगे दूसरी असली मुस्तदफीन का आगे जिक्र आ रहा है, आगे अगली आयत में जिक्र आ रहा है। तो जब उन्होंने हिजरत, ये सारे बहाने थे ऐसे थे, तो उसको फौलाई का माँ बाम जानना, अल्लाह पाक इनको क्लियर कट कमांड दे रहा है, फौला कि ये वो यही लोग हैं, मावाहुम जहन्नम, मावा ठिकाना, हम तर्जमा पड़ा हुआ है, आवा या भी उसे होता है ठिकाना, मावाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना तो बस जहन्नुम है। ये मोमिन है, मुसलमान है, अपरेंट मुसलमान है, शायद नमाजें भी पढ़ रहे होंगे, अल्लाह पाक ने उनको कहा हुआ है वल्लाहु अरकसहुम, अल्लाह ने उनको लौटा दिया था उनका, शायद शुरू में नमाजें भी पढ़ रहे होंगे, मौत आ रही है, हिजरत नहीं की हुई जब तक पूरे दीन पर पूरे अमल नहीं किया हुआ उस वक्त। तो जान वसात मसीरा, वसात साओ उनसे बुराई से, सात बहुत ही बुरी मुअन्नस के लिए, मसीरा सारा यसीरो लौट के जाने की जगह, मसीरा लौट के जाने की जगह, ठिकाना बहुत ही बुरा ठिकाना है, ये इसका भी बयान ठिकाना कर सकते हैं, मसीरा जहाँ पे लौट के जाते हैं, मसीरा वसात मसीरा, और क्या ही बुरी जगह है लौट के जाने की, जहन्नम। तो ये हिजरत ना करने वालों को इतनी बड़ी वार्निंग कि मावाउम जान। और वहाँ पे तो अगर वो अरकसम, उन्होंने जब अल्लाह ने उनको लौटाए हुए, उनको तो बिल्कुल वो जो रकू हमने शुरू किया था, उनका ईमान भी सलब हो गया था, ख़त्म हो गया था सब कुछ। तो ये इनका जहन्नम ठिकाना। हाँ, इल्लल मुस्तदफीना, अब ये मुस्तदफीन कौन कह रहा है? ये अल्लाह कह रहा है। उन्होंने तो अपने आप को मुस्तदफीन कहा था ऊपर, ये अल्लाह कह रहा है। हाँ, सवाए अल मुस्तदफीन, जिनको अल्लाह जानता है कि वो वाकई मुस्तदफीन है, वो उनकी अपनी कोई उनकी नहीं चल पाती, वो नहीं छोड़ पाते किसी न किसी वजह, उनके कोई वाकई मजबूरियां हैं, उनकी मजबूरियां। इल्लल मुस्तदफीना मिनर रिजाले, मर्दों में से है, वन निसाए वल विल्दाने, औरतों में और बच्चों में। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मालक ला तुकातिलून फी सबिलिल्लाह वल मुस्तदफीना मिनर रिजाल वल विल्दाने, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि तुम्हें क्या हुआ कि तुम अल्लाह की राह में किताल नहीं करते, कि वो मुस्तदफीन मर्दों में से औरतों में से वो नहीं निकल पा रहे थे, तुम उनको छुड़ाने के लिए क्यों नहीं निकलते? वहां पे हमने जिक्र भी किया था गज़ा का, ये कि उन लोगों के लिए जो वाकई, जिनकी कोई वाकई मजबूरी, जिनको अल्लाह जानता है, उनको अल्लाह पाक मुस्तदफीन मान रहा है, खुद बयान फरमा रहे हैं अल्लाह पाक। तो ला यस्ततीऊना हीलतन, ला यस्ततीऊना, वो इस्तिताअत नहीं रखते, वो ला यस्ततीऊना, उनकी कोई इस्तिताअत नहीं है। ये लफ्ज़ हमने पढ़ा हुआ है, हीलतन, हीला उर्दू का लफ्ज़ है, हीला, ला हौला वला कुव्वा, है बाउलाम हौला, ताकत को कहते हैं ना, ला हौला वला कुव्वत, अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं है। तो हीला वो ताकत जो इस्तेमाल करके जो काम किया जाता है, इसलिए हम हीला कहते हैं ना, कि कोई ताकत वाकत कोई काम करके जो एक बना लिया हमने, उसको हीला कहते हैं। हीला तो वो ताकत नहीं पाते, वो नहीं हीला पाते, वो के नहीं का, वला यहतदूना सबीला, वला यहतदूना, इहतदा यहतदी, हदायत, रास्ता पाना, हदायत पाना, हदायत इहतदा का मतलब होता है हदायत पाना, वला यहतदूना, वो हदायत नहीं पाते, उन्हें नहीं मिलता, सबीला, कोई रास्ता नहीं मिल रहा वहाँ से निकलने का, वो वाकई मजबूर हैं, जिनको अल्लाह पाक मजबूर कह रहा है। उनकी जिस्मानी मजदूरी है या कोई माल की मजदूरी है, काफरों के इतने घिरे हुए हैं, गुलाम हैं, नहीं निकल पा रहे, बंधे हुए हैं, जो भी मजबूरी हो, हम उसको अल्लाह ने उनको मुस्तदफीन शुमार किया हुआ है। उनको अल्लाह पाक ने इस्तिस्ना दिया है कि ये वो नहीं है, फौलाई का, ये वो लोग हैं, असल्लाहु याफू अनु, निकले तो वो भी नहीं है ना, हैं तो मजबूर हुए हैं, लेकिन हैं तो उनसे ये हिजरत ना करने वाला जुर्म तो हुआ है ना,
نہیں وجہ ان کی مستضعفین اللہ پاک ہے فولائی کا یہ وہ لوگ ہیں اللہ ہو قریب ہے اللہ عسا امید ہے کہ اللہ ہو ان یعفو عنہم ان یعفو ان افا یافو ہوتا ہے تو ان لگنے سے یافوا ہو گیا یہ ان لگنے سے یہ اس پہ کیا کہتے ہیں نصب آ جاتا ہے مضارع پر ان یعفو عنہم یہ قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا یہ جو ان سے کوتاہی ہوئی ہے مستضعفین ہے اللہ ان کو کمزوری جو بھی ہے یہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اللہ معاف کر دے گا اللہ نے خود کمانڈ دے دیا کہ ہم ان کو معاف کر دیں گے مکان اللہ عفوا غفورا اور بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا غفور ہے یہ رحیم ہے تو یہ ہجرت نہ کرنا بہت بڑا جرم تھا اس وقت وہی ایک ہی ہجرت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی وہی ہجرت اسی ہجرت کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ ہجرت اب بھی ہے لازمی تھی یہ اب بھی ہے اب بھی اگر کسی ایسی جگہ پر جہاں آپ کے دین پہ پوری طرح عمل کرنا ممکن نہ ہو ہجرت فرض ہے آپ کو دارالاسلام میں جانا پڑے گا یا اصحاب کہف کی طرح غار میں جائیں اللہ کی زمین واسع ہجرت اب بھی فرض ہے پاکستان بھی ہجرت کے لیے بنایا گیا اس لیے شروع میں آپ کے آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سبق شروع کرنے سے پہلے کہ پاکستان میں اسلام کے نام پر دارالاسلام بنایا گیا تھا تو اس لیے ہجرت کا علماء نے کیا تھا ان میں پھر مختلف رائے ہوئی تھی اس میں ابھی ڈسکس کر رہے تھے اس میں ہوئے تھے لیکن دارالاسلام اگر آپ کا دین خطرے میں ہے پھر آپ کو ہجرت فرض ہے وہ کسی جگہ پہ بھی ہو آپ کو ہجرت فرض ہے چاہے جنگلوں میں جا کے پتے کیوں نہ کھانے پڑے علماء نے یہ لکھا ہے آپ اگر کسی ایسی جگہ رہ رہے ہیں کہ آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے جنگلوں میں جائیں پتے کھائیں آپ نے اپنے دین کو بچانا ہے یہ ہجرت اب بھی فرض ہے اسی طرح ہاں غزہ فلسطین اسی لیے تو ذکر کرتے ہیں اور پھر اللہ ومن یہاجر فی سبیل اللہ جو ہجرت کرتا ہے ومن یہاجر ہاجرہ یہاجرو ہجرت کرنا ومن یہاجرو یہاجرو ہے من لگنے سے وہ ساکن ہو گیا آخر میں ومن یہاجرو یہاجر نہیں یہاجر جو ہجرت کرتا ہے یا کرے گا دونوں مضارع کا ترجمہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ابھی پہلے کوئی ذکر ہوا تھا کہ ابھی کوئی آئے کسی اور کام کے کسی اور مقصد کے لیے ہجرت وہ ہجرت تو نہیں ہے فی سبیل اللہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اللہ کے احکامات کو پورا اللہ کا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے دین پہ پوری طرح عمل کرنے کے لیے جو ہجرت ہوگی وہ فی سبیل اللہ ہوگی اگر وہ اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے یجد فی الارض مراغما کثیرا یہ اللہ کا وعدہ ہے یجد فی الارض یجدو وہ پائے گا یہ یجد کیوں آیا ہوا ہے پیچھے ومن یہاجر فی سبیل اللہ یہ بھی ایک ذرا سی بات ومن یہاجر یہ شرط ہے نا ایک شرط ہے جواب شرط بھی اسی حالت میں ہوتا ہے مضارع شرط میں من کی وجہ سے یہاجروں کے بجائے یہاجر ہوا ہے اس کا جواب شرط جب وہ ہے نا یہ وہ بھی یجدوں کے بجائے یجد بن جائے گا یجد فی الارض وہ پائے گا یجدوں کو یجد کیا ہوا ہے یجد فی الارض پائے گا مراغمن کثیرم وسعہ مراغمن رے غین میم اس کا روٹ لیٹر ہے ویسے تو مٹی کو کہتے ہیں اور کہ مٹی میں رول جانے کو بھی اس کو کہتے ہیں اس کی ناک مٹی میں رول جائے اسی قسم ارغم کا لفظ ہے لیکن اس کو جب باب مفعلہ میں ڈالتے ہیں اس کا روٹ لیٹر جب اس کو ڈالتے ہیں یہ مراغمن مفعلتن اسی طرح مراغمن اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ گاہ وہ بھی مٹی کی ہوتی ہے ایسی مٹی جہاں پہ بچا کے آدمی پناہ لے لے اس کو کہتے ہیں مراغم یہ تو مراغمن یجد فی الارض مراغمن وہ کئی پناہ گاہ پائے گا کثیرن بہت سی پناہ گاہ نکلو تو صحیح تم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تم نکلو جنگلوں میں جاؤ اللہ کہتا ہے کہ مراغمن کثیرن وسع بہت وسیع اس کو ٹھکانے مل ہی جائیں گے اپنی جائے پناہ مل ہی جائے گی کہیں نہ کہیں ملائی جائے گی اپنے آپ نکلنے والے بنو تو صحیح اس میں آگے بھی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا جو اپنے گھر سے نکل جائے مہاجر ہو کر وَمَن يَخْرُجْ من کی وجہ سے یخرجو خرج یخرجو اسی طرح بنا ہے من کی وجہ سے جیم ساکن ہو گیا وَمَن يَخْرُجْ جو نکلتا ہے من بیتہ اپنے گھر سے مہاجرن مہاجر بن کے مہاجرن پر دو زبر بتا رہے ہیں کہ یہ بھی حال ہے اس کا پیچھے بھی بتانا نسب میں چلا جاتا ہے ظالمون ظالمین میں کنورٹ اس لیے کہ یہ وہ بھی حال تھا یہ بھی حال ہے یہ بندہ نکل رہا ہے اس کا درآں حال ہے کہ وہ مہاجر بن رہا ہے
इल्लाह व रसूल ही, वो हिजरत कर रहा है अल्लाह के लिए और रसूल के लिए, अल्लाह की तरफ रसूल की तरफ, अल्लाह के अहकामात पूरे करने के लिए, रसूल के अहकामात पूरे करने के लिए। जो घर से निकल पड़ा है उसने अपना इरादा, घर से निकल पड़ा, सुम्मा युदरिकुहुल मौत, तो हिजरत हुई नहीं है, निकल पड़ा है। सुम्मा युदरिकुहुल मौत, सुम्मा अदरका युदरिको, पा लेना, पहले भी पढ़ा, इदराक समझ लेना है उसी। सुम्मा युदरिकुहुल मौत, उसको मौत ने पकड़ लिया, मौत ने उसको पा लिया। युदरिकुहुल मौत, उसको मौत ने पा लिया, ये तो निकल गया था। फ़क़द वक़ा अजरुहु अल्लाह, इसका अजर अल्लाह के पास पूरा वाक़या हो गया, वाक़ा पूरा हो गया, साबित हो गया अल्लाह का, जो इसका इसने ऐसा एक कई मुसलमानों के साथ हुआ है। एक साहबी का नाम मैं नाम भूल गया, वो हिजरत की बाहर निकले, वो हिजरत के लिए जाए, रास्ते में सांप निकाल दिया, सांप से बहुत हो गया। वह किसी को भी मौत आ सकती है, लेकिन उसकी नीयत पे जो वो निकल गया, हिजरत के सारे फ़ज़ाइल, हिजरत के तो बहुत फ़ज़ाइल अल्लाह ने उसको वो सारे फ़ज़ाइल उसको दे दिए। जो घर से निकला, रास्ते में मौत आ गई, किसी सूरत में भी आ गई, वो में निकल गया। यहाँ पे एक लफ्ज़ पहले भी जिक्र किया था, मौत हम उर्दू में मुअन्नस मानते हैं ना, मौत आ गई, तर्जमा भी हम यही कर रहे हैं। तो युदरिकुल मौत, उसको मौत आ गई है, अरबी में मुज़क्कर है, ये कि वजह के युदरिकुल मौत, युदरिको वो पाता है, युदरिको हुल मौतो, मौत पाता है उसको, तर्जमा ये होगा मौत। अगर मुअन्नस होती तुदरिकुल मौत होता ना, वो तुदरिकुल, मुज़क्कर सीगा इस्तेमाल। पहले भी मैं याद दिला देता हूँ, जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जब उन्हें मौत आई थी, इज़ा हदरा याकूब अल मौत, हदरत नहीं था, हदरल मौत तो या तो युदरिकुल मौत, तो मौत मुज़क्कर है। तो सुम्मा युदरिकुल मौत, तो उसको मौत आ गई, या उसने मौत ने उसको पा लिया। फ़क़द वक़ा अजरुहु अल्लाह, उसका अजर तो अल्लाह पाक के पास पक्का साबित हो गया। वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है, उसको अजर अल्लाह अता करेगा। हमने इसलिए रखा था कि टाइम हमारे पास था, ये 2-3 यादें थी। इसी के रिलेशन में भी आप ये बात आगे कंटिन्यूएशन में भी हम कर सकते हैं, अलग से भी इसको कर सकते हैं। ये जो हिजरत हो रही है या जिहाद हो रहा है, दोनों में हम बात करें। ये हिजरत का पीछे जिक्र आ रहा है ना, ये हिजरत कर रहे हैं या जिहाद के लिए मुसलमान निकल रहे हैं या किसी भी सफ़र के लिए निकल रहे हैं, ये तीनों बातें हो सकती हैं। इन्हें मुहाजिरीन के लिए भी हो सकता है जो हिजरत कर रहे हैं, उनको जो हालात पेश आ रहे हैं, या मुसलमान जब सफ़र पे जा रहे हैं, या कि कोई ऐसे भी सफ़र है, जिहाद वाला सफ़र है या वैसे सफ़र है, तीनों के लिए। वइज़ा दरबतुम फिल अर्द, ये पिछली दफ़ा भी पढ़ा था, जब तुम ज़मीन में सफ़र करने लगो, ज़राबा यज़रिबु, हमने कहा था कि ये पैंडा मारना इनको में कहते हैं। ये फिर मुझे ख्याल आया कि उर्दू में भी इस्तेमाल होता है मारने, मुसाफत मारना, मुसाफत को मारने का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कहीं ना कहीं उर्दू में, कि ये सफ़र करने के लिए ज़मीन में मारना। जब तुम ज़मीन में मारो, तर्जमा तो ये बनता है वइज़ा दरबतुम, जब तुम ज़रब लगाओ, फिल अर्द, ज़मीन में, क्या मतलब है, जब तुम सफ़र करो, जब तुम सफ़र करो। फलैसा अलैकुम जुनाहुन, फलैसा पस, लैसा नहीं, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन ये पढ़ा हुआ लफ्ज़, कोई हरज, कोई गुनाह नहीं है, कोई हरज नहीं है। तर्जमा हम इसको गुनाह या हरज दोनों करते हैं। कोई हरज नहीं है, किस बात में हरज नहीं है, अन तक़सुरू मिनस्सलाह, अन तक़सुरू, कसरा यकसुरु, तक़सुरू, अन तकसुरूना होना चाहिए, तकसुरूना जमा के लिए, तकसुरूना अन लगने से नून गिर गए, ये मुजारे के साथ। देखिए सारी इस पिछले 2-3 रकू में मुजारे के अमाल हमें नजर आ, जो अमल करने वाले हैं। लम है, अन है, इन है, हत्ता है, लाम अमर है, लाम तालील है, ये सारे जो है ये मुजारे को कन्वर्ट करते हैं। कोई नसब देते हैं, कोई जज़म देते हैं। कभी इसकी लिस्ट में बता दूँ कभी फिर। तो लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर कोई हरज नहीं है कि अन तकसुरू मिनस्सलात, कि तुम कसर करो। कसर यकसुरु, कसर ये कहते हैं ये तूल के मुकाबले में है, कसर मुकम्मल के मुकाबले में है, छोटा करना, कम होना, इसके मुकाबले में है इत्माम, मुकम्मल होना। अन तकसुरू मिनस्सलात, नमाज को कम कर लो, छोटा कर लो, नमाज को में कसर कर लो, जिसको हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, नमाज कसर कर लो उसका। अन तकसुरू मिनस्सलात की कोई हरज नहीं है कि तुम अपनी नमाजों में कसर कर लो,
तर्जमा वाज़ेह हो गया। अन तकसरू मिन सलात, नमाज़ों में कसर कर लो, उसके लिए तो वाज़ेह है कि जो 4 रकात हैं वो 2 रकातें में होंगी, बाकी 3 रकातें तो या सुबह की रकातें उसी तरह है। अन तकसरू, नमाज में कसर कर लो। इसकी वजह क्या है? आगे वजह भी देखें, आगे जिनके पास कुरान पाक खिला हुआ है तो उसे सल्ले काफ लिखा हुआ है, यहाँ रुकना भी जायज़ है और आगे कंटिन्यूस पढ़ना भी जायज़ है। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफरू, अगर ये कोई हिजरत करने वाला बंदा जा रहा है या कोई लोग जा रहे हैं तो उन्हें डर तो है ना हमारे पीछे काफिर लगे हुए हैं। वैसे यहाँ तो इसके साथ मिलाकर पढ़ें तो इसका मतलब है, तो वो फिर ये कहें नमाज का टाइम हो गया है तो उन्होंने जल्दी अपनी जल्दी के लिए अल्लाह पाक ने जो रियायत दी हुई है उस पर अमल किया, नमाज में कसर की। इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खाफा या खाफ हुआ है, इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ है, तुम्हें डर है, अन यफ्तिनकुम, ये यफ्तिनकुम ज़राबा यदरिबो से है, फातिना यफ्तिनो, ज़राबा यदरिबो फातना यफ्तिनो, फितने में पड़ जाना, आजमाइश में पड़ जाना, तकलीफ में पड़ जाना। अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफरू, के तुम्हें ये काफिर लोग जो हैं तुम्हें तकलीफ देंगे, तुम्हें फितने में डाल देंगे। अन यफ्तिनकुम, अन की वजह से यफ्तिना बनाया ना, यफ्तिनो होना चाहिए ना, फाताना यफ्तिनो होना चाहिए, अन की वजह से यफ्तिना, नून के ऊपर ज़बर आ गई। अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफरू, अगर तुम्हें डर है कि काफिर तुम्हें तकलीफ देंगे तो तुम नमाज में कसर कर लो। इस बुनियाद पर बाद लोगों ने इसको ये भी कहा कि ये अब भी उस सूरत में नमाज कसर की जाएगी, कहते हैं। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने डायरेक्ट पूछा इसी आयत की बेस पर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट सवाल किया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला। मेरे ख्याल में हज़रत मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं लिखा है या किसी शफ़ी ने कि उन्होंने है अहमद रज़ा खान, उन्होंने पूछा भी कि इसकी वजह तो ये, तो अगर हम पढ़ें तो ये उसी सूरत में कसर हम करेंगे जब हमें ख़तरा हो काफिरों का। तो हुजूर ने कहा कि अल्लाह पाक ने जो तुम्हें तोहफ़ा दिया हुआ है उस तोहफ़े को कबूल करो हर सूरत में। आम सफ़र में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में हमेशा उन्होंने कसर किया है, चाहे वो जिहाद का सफ़र था या वैसे सफ़र, ये हज का सफ़र जो गए हैं रास्ते में कसर करते हुए गए हैं, वो कसर करते हैं। अंत तक तो इन खिफ्तुम लिखा हुआ है, क्या वजह उसकी बुनियादी यही थी, लेकिन अल्लाह ने इजाज़त दे दी है, उसको आम जिंदगी में भी इस्तेमाल किया गया। इन्नल काफिरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, ये अगर काफिरों का बस चलेगा तो इन्नल काफिरीना, बेशक काफिर, कानू लकुम, अच्छा ये भी इन्ना जो है ना, ये भी वो जो आप उस दिन बता रहे थे ना आप कि इन्ना जो है वो मंसूब करता है उसको इसम को, ये इसम है, काफिरून का काफिरीन में कन्वर्ट किया ना। इन्नल काफिरीना, बेशक काफिर, कानू थे, तर्जमा हैं, लकुम तुम्हारे लिए, अदुवन दुश्मन, मुबीना वादे दुश्मन, ये तर्जमान कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। ये तो हुआ तीनों हालतों में, या ये अगर काफिरों का कहीं पे भी खौफ है, आगे सलात खौफ भी आ रहा है, ये देखें ये खौफ है, इन खिफ्तुम की जिक्र आया है, लेकिन नमाज पढ़ने का एक तरीका से कहा है, फिर आगे सलात खौफ का बाकायदा जिक्र हुआ आगे एक आयत में, अगली आयत में आ रही है। ये अगली आयत है, वैज़ा कुन्त फ़ीहिम, ये जो मुसाफिर जा रहे हैं, वैज़ा कुन्त फ़ीहिम, ये आप भी इस सफ़र में शामिल हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वैज़ा कुन्ता, काना यकूनो, कुन्ता तू था, अच्छा ये पहले भी जिक्र किया है कि ये माजी है, लेकिन इज़ा जब इसके साथ लगता है तो उसका तर्जमा हम करते हैं हाल में। उसकी मिसाल मैंने दी हुई थी, इज़ा जा नसरुल्लाह, मशहूर मिसाल है। जा माजी है, इज़ा जा जब आ जाए मदद अल्लाह की, ये तर्जमा हम कर सकते हैं। जा जब आ गई मदद अल्लाह की, तर्जमा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन माजी के साथ इज़ा लगे तो उसका मुज़ारे वाला तर्जमा, हाल वाला तर्जमा भी हो सकता है। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम, अब तर्जमा जब तू इनके साथ हो, था नहीं, अब था नहीं तर्जमा करेंगे। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम, जब आप भी इनके साथ हो सफ़र में, ये जो सफ़र का जिक्र आ रहा है, या जिहाद में चल रहे हैं, दुश्मन का खतरा है, वो आप हैं, इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुम, ऊपर जिक्र आ गया है, आप भी इसमें मौजूद हैं। फ़अक़मत लहुमुस्सलात, और तुम नमाज पढ़ाने के लिए, अकामा खड़ा करना, अक़मत लहुम, तू खड़ा करे, तूने खड़ा किया, मादी लगा हुआ है, मादी लगा हुआ है, लेकिन वो काना की वजह से, अगर तुम नमाज इनके लिए खड़ी करो, तुम इनको नमाज पढ़ाने लगो, दूर से लसन मौजूद है, ज़ाहिर इमामत तो वही फरमाएंगे, फिर ये इसका क्या तरीका होगा। वैसे तो आगे जिक्र शायद फिर दोबारा आ जाए, यहीं जिक्र कर देते हैं। वैसे तो अगर जिहाद में मसरूफ़ हैं,
जंग चल रही है, फिर नमाज का काम मौका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 नमाजें ग़ज़वा खंदक में, ये मशहूर वाक़या है, ग़ज़वा खंदक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 नमाजें फौत हो गई। ये काम भी नहीं कर सके कि खिफ तुम कि हम कसर कर लें या किसी तरह जो अभी ये सलात खौफ का जो जिक्र आ रहा है उस तरह भी कर नहीं सके। अगर जंग की हालत है, आप लड़ रहे हैं आपके, फिर तो आप नमाज छोड़ भी सकते हैं, वो छोड़िए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 नमाजें फौत हुई हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में तरतीब से पढ़ी हैं। तो लेकिन ये अगर ऐसा जंग में है, ख़तरा भी है, लेकिन चांस है, हम नमाज खौफ का तरीका बता रहे हैं, अगर नमाज का चांस मिल रहा है कि आप जमात करा रहे हैं तो तरीका उसका अल्लाह पाक बयान फरमा रहे हैं, फल तकुम ताइफतुम मिनकुम माका, फल तकुम अकामा यकीम, नहीं अकामा यकूम, कामा यकूमो है ना, यकूमो कामा यकूमो से फल तकुम, कामा वो खड़ा हुआ, तकूमो वो खड़ी हुई, ऐसे ही है ना, तकूमो वो खड़ी होती है, वो खड़ी होगी, इसका तर्जमा बनेगा। उसके साथ लाम जब लग गया, लाम, तो वो तकूमो का आखिर वाला वो उसको साखन करेंगे तो वाव को गिराना पड़ेगा, तकुम रह जाएगा। फल तकुम, ये लाम कौन सा है? लाम अमर है। बस चाहिए कि ये ताइफतुन, चाहिए कि एक ग्रोह खड़ा हो जाए, मिनहुम माका, तुम्हारे साथियों में से एक ग्रोह तुम्हारे साथ जुमात में खड़ा हो जाए। फल तकुम ताइफतुम मिनहुम माका, वाज़ेह तर्जमा वाज़ेह हो गया ना, ग्रामर भी, कि तुम एक ग्रोह तुम्हारे मुसलमानों में से तुम्हारे पीछे नमाज के लिए खड़ा हो जाए। फल तकुम ताइफतुन, खड़ा हो जाए एक ग्रोह, मिनहुम उनमें से, माका तुम्हारे साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है कि इमामत आप करवा रहे हैं, आपके पीछे खड़े हों। वल या, आगे हुक्म लगा रहा है, वल याखुजू अस्लिहतहुम, वल याखुजू, ये वाव तो और हो गया, लयाखुजू, ये भी फेल अमर है, लाम अमर है, याखुजूना होना चाहिए, लाम लगने की वजह से नून गिरा हुआ है, लाम अमर है। तर्जमा क्या करें? उन्हें चाहिए कि वो पकड़े रखें, लेके रखें, अस्लिहतहुम, नमाज में भी असला अपना लेके खड़े होंगे। ये नमाज खौफ में ये जो आपके साथ जमात खड़ी हो रही है, ये अपना असला बंद आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। वल याखुजू अस्लिहतहुम, अपना अस्लिहतहुम, वाज़ेह तर्जमा, सलाहुन की जमा अस्लिहा, सलाहुन उसका वायद है, असलहा उसके वो है जब मैं असलहातहुम, उनका वो अपना असला लेकर आपके पीछे खड़े होंगे। फैज़ा सजदू, जब वो सजदा कर लें, जब उन्होंने सजदा कर लिया, फैज़ा सजदू, जब वो सजदा कर लें, इस तरह इज़ा जा की तरह, जब वो मदद आ जाए, फैज़ा सजदू, जब वो सजदा कर लें, देखिए अब तक फल यकूनू, ये भी उसी तरह, यकूनूना लाम लगने की वजह से हो जाएं वो, ये भी फेल अमर है, लाम अमर है। फल यकूनू मिन वराइकुम, वो पीछे हो जाए, वो तुम्हारे पीछे हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे खड़े हैं, कुछ लोगों ने पीछे जमात खड़ी की है, पहला रकात उन्होंने पढ़ी, सजदा किया, ये पीछे चले जाएंगे। फल मिन वराइकुम वलताते ताइफतुन उखरा, वलताते ये भी लाम अमर है, और ताती को ताते बनाए हुए है, आ जाए दूसरा ग्रोह, ताइफतुन उखरा, दूसरा ग्रोह आ जाए। लम युसल्लू, जिन्होंने अभी ये नमाज नहीं पढ़ी, लम युसल्लू, ये भी युसल्लूना लाम की वजह से नून गिरा हुआ है, लम युसल्लू, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, फल युसल्लू, बस वो भी नमाज पढ़ें, ये भी फेल अमर है, दोनों लाम अमर है। लम युसल्लू फल युसल्लू, बस वो नमाज पढ़े, माका तेरे साथ नमाज पढ़े। आगे फिर दोबारा अल्लाह पाक ने कहा, वल याखुदू हिज़्रहुम व अस्लिहतहुम, ये भी अपनी पूरी हिज़्रहुम, अपना दिफा करना, पीछे हमने पढ़ा, खुदू हिज़्रकुम, अपना दिफा मजबूत रखो, तुम पकड़ के रखो अपनी, वल याखुदू हिज़्रहुम, बिल्कुल होशियार रहें, अपना दिफा पकड़ के रखें, वास्लिहतहुम, और असले के साथ वो नमाज पढ़ेंगे। ये दो रकातें पढ़ रहे हैं, ये फिलहाल 2 रकातें हैं, लेकिन आगे इसकी तफसील भी है। तर्जमा तो वाज़ेह हो गया ना कि वल याखुदू हिज़्रहुम, वो अपने क्या कहते हैं, होशियार रहें और अपना असला लेके रखें। अब ये सलात खौफ अल्लाह ने बयान कर फरमा दी है, इस पे उलमा की तशरीह मौजूद है।
کہ اب یہ تو انہوں نے 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، ایسی ہیں. اس کی 4-5 قسم کی باتیں. اگر وہ مجھے موقع ملا ترجمہ پورا پڑھ لیں، موقع ملا میں واپس آؤں گا کہ اس کی وہ 4-5 تشریح ہیں. ہم سیدھا ترجمہ تو سمجھ آ گئی ہے نا. صلاۃ خوف میں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا کے ایک طائفہ نے اس کے پیچھے جماعت پڑھی ہے اور پھر وہ 1 رکعت پڑھ کے پیچھے چلے گئے ہیں، دوسروں نے دوسری رکعت پڑھی ہے اور بعد میں پھر انہوں نے اپنی اپنی رکعتیں بعد میں مکمل کر لی ہیں. اس کو آگے اللہ پاک جو ہم ترجمہ پورا کر لیں پھر واپس آ جاتے ہیں اگر ٹائم ہوا تو. ود الذین کفروا، ودا یہ پڑا ہوا ہے نا، پسند کرنا، چاہنا. ود الذین کفروا، کافر تو یہ چاہتے ہیں، لو تغفلون، لو کاش کہ شاید تغفلون تم غافل ہو جاؤ. کس سے؟ عن اسلحتکم، اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ. اسلحتکم و امتعتکم، سلاح سن کی جمع اسلحہ ہو گیا نا، متاع کی جمع امتع ہو گیا. یہ امتعتکم تمہارا متاع، تمہارا سامان. کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم ذرا اپنے اصل مسئلے کے ذرا غافل ہو، اپنے سامان سے غافل ہو. تو وہ کیا کریں گے؟ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. ترجمہ میں کر دیتا ہوں، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ یکبارگی تم پر ایک حملہ، بڑا حملہ کر دیں. ترجمہ اس کا یہ ہے. کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ تم ذرا سے غافل ہو. اب نماز پڑھ رہے ہو نا، غافل کوئی بھی نہیں ہے. وہ کیا، خذو حذرکم، ہوشیار بھی ہو، اسلحہ پہن کے بھی تم نماز پڑھ رہے ہو، تم ہوشیار ہو، کھڑے ہو. کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم ذرا سے غافل ہو تو وہ تم پہ حملہ کریں. یہ حملے کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ فیمیلون، مالا یمیلو ہے، اس کا مطلب تو ہوتا ہے جھکنا، کسی طرف جھکاؤ ہو جانا. یہ ہم کہتے ہیں نا اس کا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا ادھر جھکاؤ ہے، ملان کا لفظ اسی سے نکلا ہوا ہے کہ اس کا جھکاؤ ادھر ہے، جھکاؤ. مالا یمیلو کا مطلب ہوتا ہے کسی طرف جھکاؤ ہونا. لیکن اس مالا یمیلو کے ساتھ آگے پرپوزیشن الا آ جائے نا، مالا الا، پھر اس کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ، عَلَىٰ آ گئی ہے نا، فَيَمِيلُونَ، وہ حملہ کر دیں، عَلَيْكُمْ، تم پر جھک پڑیں. ترجمہ یہ نہیں ہوگا، تم پر حملہ کر دیں، عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، ایک بڑا حملہ وہ کر دیں. يَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ تو پھر یہ اسی کوشش میں ہوتے ہیں. وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ تم ذرا سا غافل ہو جاؤ اور وہ تم پہ حملہ کر دیں. ایک نظر دیکھ لیں، اوپر ہم نے لفظ پڑھا ہے اسلحتہم، وہاں تا کے اوپر زبر تھی، یہاں پہ اسلحتکم امتعتکم، یہ بھی ذرا اسلحتہم یہ مفعول تھا نا کس بات کا؟ وَلْيَأْخُذُوا خِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وہ لے کے رکھیں اپنا اسلحہ ان کا مفعول ہے. جو چیز انہوں نے پکڑی ہوئی ہے وہ اسلحہ ہے. مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر ہوگی. اسلحتو اسلحتہ میں کنورٹ ہو جائے گا. اور یہاں پہ ان کی وجہ سے، ہے نا، حرف جر آ گیا. ابھی میں نے کہا نا حرف جر کی وجہ سے کوئی اسم اس میں جاتا ہے، جر میں جاتا ہے. ان اسلحتکم و امتعتکم دونوں کے. تو یہ تو یکبارگی تم پر ایک بڑا حملہ کرنے. ولا جناح علیکم، تم پر وہی ترجمہ ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے. ان کان بکم اذن من مطر، یہ اسلحے سمیت نماز پڑھنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے. اسلحے پورے اسلحہ کو اٹھا کے تم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو ذرا سی اس میں کہہ کے اس میں حرج نہیں ہے. ولا جناح علیکم ان کانا، اگر ہو بکم تمہارے ساتھ، اذن کوئی تکلیف ہو تمہیں، میں مطرن بارش کی وجہ سے، شاید بارش کی وجہ سے اسلحہ ان کا کیا ہو جاتا ہو، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن ترجمہ یہ کہ بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی اس میں کوئی تکلیف ہو. او کنتم مرضی، یا تم مریض ہو، یا تم مریض ہو، یا بارش کی وجہ سے، میں مطرن لکھا ہوا ہے کہ بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو، تو کس میں حرج نہیں ہے؟ ان تضعوا اسلحتکم، وضع یضع، وضع رکھ دینا. یہ وضع حمل جو کہتے ہیں نا، وہ بھی حمل رکھ دیا جاتا ہے نا، وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا ہوا یہ لفظ پڑھا ہوا ہے نا، انی وضع، تو کیا حضرت مریم کا قصہ پڑھا ہوا ہے نا، وضع یہ لفظ پڑھا ہوا ہے، وضع رکھ دینا. ان تضعوا، ان تضعون، نون گرا ہوا ہے ان کی وجہ سے، ان تضعون وضع یضع، تضعون تم رکھتے ہو، ان تضعوا کہ تم رکھ دو، اسلحتکم اپنا اسلحہ تم رکھ دو.
इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर तुम्हें तकलीफ़ है बारिश की वजह से या किसी और वजह से, मरीज होने की वजह से कोई तकलीफ़ है, तो फिर तो असला तुम उतार के रख सकते हो। हुक्म तो पीछे असले के साथ नमाज पढ़ने का, लेकिन आगे अल्लाह पाक ने वार्निंग दे दी है, वह खुदू खुद रखूँ, ये असला तुम छोड़ के रखोगे लेकिन अपना होशियारी तुम नहीं छोड़ोगे। ये तुम नमाज पढ़े असला रखा है, लेकिन वह खुदू हिदरकुम, अपनी हिफाजत का बंदोबस्त तुम करके रखोगे। तुम खिद इन अल्लाह, बेशक इन आदा तैयार किया है, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, अजाबन मुहीना, वादे अजाब तैयार कर रखा है। तो ये नमाज खौफ का जिक्र आ गया। वो तफसील जो है अगर अगली आयत का तर्जमे के बाद जो टाइम होगा तो हम उसमें कर लेंगे। इन अल्लाह आदा लिल काफिरीना अजाबन मुहीना, वादे हो गया। फ़ैज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता, जब तुम अदा कर चुको नमाज। ये लफ्ज़ सूरह जुम्मा में भी आया है, वो के कैसे नूदी अलैहिस्सलात में यौमुल जुम्मा फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ, फ़ैज़ा कैसे है वो हैं, फ़ैज़ा क़ुदियत, जब नमाज अदा हो जाए, क़ुदियत सलातो, जब नमाज अदा हो जाए तो फिर तुम ज़मीन में निकल जाओ पैदो। तो ये लफ्ज़ हैं सूरह जुमा में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, बात तो वादे है। फ़ैज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता, वहाँ हमने पढ़ा हुआ है नमाज कदा करने का। यहाँ मतलब है कि जब नमाज हो चुके, नमाज अदा हो चुके, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो ये नमाज तो वैसे भी कसर का भी हुक्म हुआ है। और अभी सलात खौफ में एक रकात पढ़ के पीछे चले गए हैं, दूसरी रकात बाद में मुकम्मल की है। अजीब तरह की नमाज है ना, अल्लाह पाक ने ये सहूलत दी हुई है, तो सिर्फ अजीब तरह की नमाज है। तो ये इस नमाज को अल्लाह की, जब ये तुम कर चुको, इस किस्म की नमाज तुम पढ़ चुको, अब मैं तर्जमा ये करें, जब तुम ये नमाज पढ़ चुको, इस किस्म की नमाज पर, फ़ज़्कुरुल्लाह, फिर जिक्र पे तो कोई पाबंदी है ना, फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, क़ियामन, खड़े हुए, व क़ुऊदन, बैठे हुए, व अला जुनूबिकुम, अपने पहलुओं पर, यानी लेटे हुए हैं, जन की जमा, अपने पहलुओं पर लेटे हुए। इसका मतलब है कि ये जो जिक्र अज़कार है ना, बहुत लोग ये कहते हैं ये अल्लाह अल्लाह करने का क्या फ़ायदा, अल्लाह 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 की जिक्र है ना, इसकी भी बड़ी अब तो हमारी होते हैं, बहुत लोग कहते हैं इसका क्या फ़ायदा है, अल्लाह, ये अल्लाह क्या है, अल्लाह को हर वक्त याद रखना है। सुभान अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, जो तस्बीहात हैं जो करने, ये अल्लाह का है। अल्लाह को जिक्र तो हर वक्त कर सकते हैं ना, अल्लाह का जिक्र तो वैसे तो अल्लाह का जिक्र, जैसे कई दफ़ा मैंने भी ये कहा, अल्लाह का जिक्र, असली जिक्र तो ये है कि वो जो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब का मतलब ये है कि अल्लाह हर वक्त हमें याद हो, पूरी ज़िंदगी हर काम करते हुए अल्लाह याद हो, तो फिर वो काम हम सारे ठीक करेंगे ना, फिर तो तत्मइन्नुल क़ुलूब तो हो ही जाएगा ना। अला बिज़िक्रिल्लाह, वो जिक्र का मतलब है कि अल्लाह हर हालत में याद हो। लेकिन ये तस्बीहात का भी यहाँ पे है कि ये क्या है, चलते उठते बैठते ये जो कर रहे हैं, ये तो तस्बीहात हैं ना। अल्लाह याद भी है, उतना भी याद है, ठीक है, अमल भी ठीक है, लेकिन तस्बीहात भी कर रहे हैं। तो ये तुम याद करो। आगे जो लफ्ज़ आ रहा है, इसलिए मैंने कज़ाए तुम पे ज़रा जोर दिया था कि ये जो तुम नमाज, इस किस्म की नमाज तुम पढ़ चुके हो, फिर तुम जिक्र करते रहो, बैठे हुए हो या लेटे हुए हो, जिस हालत में हो, जंग में हो, जिसमें तुमसे, फ़ैज़त मअनंतुम, ये आगे आ गया, फ़ैज़त मअनंतुम, जब तुम्हें इत्मीनान हो जाए। इत्मीनान बाब इफ्तिआल है, शायद ये है इफ्तिआल है, बाब इफ्तिआल। फ़ैज़त मअनंतुम, जब तुम मुतमईन हालत में हो जाओ। इत्मानंतुम, तो आप मीम नून शायद उसका मादा है, जब तुम इत्मीनान की हालत में आ जाओ, उस वहाँ क्या कहे, फ़अक़ीमुस्सलात, वहाँ क़ज़य्तुमुस्सलात कहा हुआ है, यहाँ अक़ीमुस्सलात है। ये अक़ीमुस्सलात बड़ा निज़ाम सलात है। वह फिर तुम नमाज को अपने ठीक तरतीब से जो तरीक़ा है उस तरह अक़ीमुस्सलात, वहाँ पे अक़ीमुस्सलात है। ये क़ज़य्तुमुस्सलात है, नमाज अदा करने वाला मामला तो हो गया, लेकिन अक़ीमुस्सलात फिर तो तुम बाकायदा पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो नमाज तुमने अदा करनी है, उसके जो सारे जो अक़ीमुस्सलात का जिक्र है, फ़अक़ीमुस्सलात, फिर तुम नमाज को उस तरह कायम करोगे जिस तरह का उसका हक़ है, जैसे उसका हुक्म है। और उसके पीछे भी हमने पढ़ा था कि उसकी कितनी ख़ुसूसियात हैं कि ये बातें होंगी उसमें। अक़ीमुस्सलात, इन्न सलाता, बेशक सलात, कानत थी, तर्जमा तो लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर है, हम इसका तर्जमा करें, अलल मोमिनीना, मोमिनों पर, किताबन, कुतिबा अलैकुम सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। तो कुतिबा तुम फर्ज किए गए, उसमें जो चीज लिखी जाए उसको क्या कहेंगे, किताब, यानी जो फर्ज किया हुआ, जो फर्ज है।
किताबन ये फर्ज हैं, इसका तर्जमा हम ये कहते हैं किताबन मौकूता, तुम पर लिखे गए हैं, तुम पर फर्ज किए गए हैं। ये जो जब इन सलाता कानत अलल मोमिनीन, मोमिनीन पर किताबन मौकूता, ये फर्ज हैं अपने वक्त के हिसाब से। ये जो वक्त का हिसाब है ना, मौकूत, ये अपने वक्त में नमाज पढ़ना। इसलिए वो जो वक्त के जो हमें कभी सिखाए जाते थे ना कि फ़राइज़ क्या हैं, वो क्या अरकान है नमाज, क्या शराइत अरकान जो सिखाए थे उन्हें, नमाज वक्त का हो जाना भी एक है कि वक्त के मुताबिक नमाज अदा करना तुम पर लिख दिया गया है। आखिरी आयत का भी ये वादे हो गया। आखिरी आयत का फलात, अच्छा ये इनको मिलाएं, कैसे मिलाएं कि ये जो सफ़र हो रहा है, जो महाजरीन का भी सफ़र हो रहा है और जिहाद के लिए भी सफ़र हो रहा है, सलात खौफ भी पढ़ी जा रही है, ये सारी बातें, जिहाद का भी जिक्र आ रहा है इसमें। इसके साथ ये आयत साथ लगाएगी कि ये वला तहिनु, जिहाद के साथ ताल्लुक़ है। इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, इस वाक़े का जिक्र हम कर चुके हैं, लेकिन तर्जमा हम पढ़ते हैं। फला तहिनु वला वहाना यहिनु, तहिनु वला तहिनु, तुम हरगिज़ सुस्ती ना करो। वहाना यहिनु, सुस्ती कर देना, तसाहल का शिकार हो जाना। वला तहिनु फिब्तिगाइल कौमी, इब्तिगाए कौम, उस दुश्मन कौम का जिक्र है, उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए तुम सुस्ती मत करो। ये हमने जब सूरह इसी में जब हमने पढ़ा था, कौन सी गज़वा, गज़वा ओहद से दूसरे दिन क्या हुआ था, ये जिक्र वहाँ पे हमने किया था ना। दूसरे दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ज़ख्मी सहाबा को 70 घरानों में शहादतें हो चुकी हैं, मदीना में कोराम मचा हुआ है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हम इनके पीछे जाएंगे, तो अबू सुफियान के लश्कर के पीछे जाएंगे, जिक्र किया था ना वहाँ उस वक्त उस हालत में भी मुसलमान उठ के उनके पीछे गए थे। वो फिर उनको पहुँच तो नहीं, पकड़ नहीं पाए थे, वो निकल गए थे। लेकिन ये वो जिक्र है, तुम सुस्ती मत दिखाओ इस दुश्मन कौम के पीछे जाने में। वला तहिनु फी इब्तिगाइल कौमे, ये क्योंकि उस वक्त हालत ये थी कि मदीने में तो कुरान मचा हुआ था, 70 शुहदा का हालत थी। मदीना की बस्ती कितनी बड़ी थी, 70 घरों में शहादतें हुई पड़ी थी और बाकी कितने साहबा जख्मी भी थे। तो अगर अल्लाह कह रहे हैं इन तकूनू तालमूना, इन तकूनू अगर हो तुम, काना यकून होते, इन तकूनू, इन आ गया ना, तकूनू ये भी नून, तकूनू ना, इन ने इसको नून गिराया हुआ है। इन तकूनू ये शर्त भी है, इन तकूनू अगर हो तुम, तालमूना, ये तालमूना कौन सा लफ्ज़ है, अलिफ लाम मीम, इसका मद अलम, अलीम, अलीम हमने पढ़ा, अलम वाला, तकलीफ वाला। इन तकूनू तालमूना, अगर तुम अलम में हो, तुम तकलीफ में हो, तुम्हें तकलीफ पहुंच रही है। फ़इन्नहुम यालमूना, उनको भी तकलीफ पहुंची हुई है। फ़इन्नहुम कमा तालमूना, जैसे तुम्हें अजियत पहुंची हुई है। अलीम का तर्जमा हमने अजियतनाक, अज़ाबुन अलीम, अजियतनाक अज़ाब हमने तर्जमा किया, ये वो अलम है। अलम उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अलम। तो ये अलीम, तालमूना ये अलिफ के साथ है, अलिफ लाम मीम। तालमूना अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची हुई है तो उन्हें भी तकलीफ पहुंची हुई है, उन्हें भी तकलीफ है, या कमा तालमूना उन्हें भी तकलीफ हो, इसलिए तुम निकलो उनके पीछे। इसमें सुस्ती ना दिखाओ। थोड़ी ज़ाहिर के जख्मी साहबा थे, फिर भी निकले थे, साहबा निकले थे, उस हालत में भी निकले थे, साहबा तो साहबा थे ना, निकले थे। लेकिन लोगों के दिलों में कुछ ना कुछ रिलक्टेंस या वो होगी ना, तो अल्लाह पाक कह रहे हैं ये रिलक्टेंसी नहीं होनी चाहिए, इसमें तुमने सुस्ती नहीं दिखानी। क्यों? आगे वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, वजह उसकी अल्लाह पाक बता रहा है। तकलीफ उन्हें भी पहुंची हुई है, तुम भी तकलीफ में हो, वो भी तकलीफ में है। जैसे या बदर वाली तकलीफ होने पहुंची है, वो भी जिक्र कर लेना। बदर में उनके 70 मारे गए थे ना, उन्हें भी तकलीफ हुई थी ना बदर में। तो ये अब तो आगे वतरजूना मिनल्लाह, वतरजूना रजा यरजू का मतलब क्या होता है? उम्मीद करना। रिजा उर्दू में इस्तेमाल होता है ना, रिजा उम्मीद को कहते हैं। वतरजूना तुम्हें तो बड़ी उम्मीदें रखते हो, मिनल्लाह अल्लाह से, माला यरजून उन्हें तो कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। तुम तो उनके पीछे निकलो, मर जाओ, जो भी हो जाओ, तुम तो अल्लाह के पास जाने वाले हो, तुम तो अल्लाह की उम्मीद रखने वाले लोग हो ना। उनको क्या उम्मीद है? वो तो भाग रहे हैं,
हैं, वो तो भाग रहे हो, तो जो भी हो गया वो उन्हें के किस किस्म की उम्मीद है, तुम्हें तो अल्लाह से बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए अगर दुश्मन के पीछे भी जाना पड़ जाए ना तो तुम इसमें बिल्कुल सुस्ती न दिखाओ। वो जो तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तो बहुत इनाम रखे हुए हैं, तुम उम्मीद रखते हो उन्हें कोई, वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह खूब जानने वाला हिकमत वाला है। 5 मिनट में वो 4 बातें कर लें कि वो ज़रा सा जो हमारे उलमा ने लिखा हुआ है सलात खौफ की 3-4 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये वादे वादे बयान होगी ना, 2 रकातें पढ़नी है, 2 रकातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे 2 रकातें पढ़ेंगे, पीछे एक ताइफा 1 रकात पढ़ेगा, वो हट जाएगा, दूसरा ताइफा दूसरी रकात पढ़ेगा हुजूर के साथ, तो हुजूर तो अपनी नमाज ख़त्म कर लेंगे, तो ये अपनी रकात जैसे रह गई है उनकी, और वो जो ताइफा पीछे रह गया है जब ये फारिग होंगे वो अपनी 1 रकात मुकम्मल करेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि ऐसे है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकातें पढ़ाएंगे, कि ये पहली वाली उसमें पहली वाली रकात में दूसरी वाली रकात को लंबा करेंगे, उसमें जब वो ये जब सलाम फेर लेंगे कि वो वाली आके इसमें शामिल हो जाएंगे। कुछ इस किस्म की बात भी लिखी हुई है। या कसरी करेंगे, 2 ही रकातें पढ़ेंगे, हुजूर की 2 रकातें पूरी होगी। 2 सूरतें और भी लिखी हुई हैं, कहाँ लिखी हैं ये अभी मेरे पास इसमें है या नहीं है, इसको देख लेते हैं। ये तफहीमुल कुरान में है या इसको ज़रा देख लेता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। तर्जमा के बाद हो गया, ये जो 4 सूरतें अगर हम देख लें ना तो अच्छा होगा। मेरे ख्याल में तदब्बुरुल कुरान में है, इधर पढ़िए। ये 15 रकू है ना। कसर की शक्ल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के अमली तवातर से, ये तदब्बुरुल कुरान है कि सहाबा के अमली तवातर से साबित है। वो ये है कि जो नमाजें 4 रकातें वाली हैं वो 2 रकात पढ़ी जाए, ये तो कसर की तजवीज़ है। सलात खौफ की शक्ल आयत 142 की रोशनी में आयत के अल्फाज से जो बात निकलती है वो ये है कि इमाम कसर नमाज 2 रकात अदा करे और मुक्तदियों के दोनों ग्रोह 1-1 रकात इमाम के पीछे और 1-1 रकात बतौर खुद अदा करके अपनी नमाज पूरी कर लें। इमाम दूसरी रकात के लिए खड़े होने से पहले इतना तवक्कुफ करे कि पहली जमात अपनी दूसरी रकात इख्तियार के साथ ख़त्म करके पीछे हट सके और दूसरी जमात उसकी जगह ले सके। इस तरह मुक्तदी इमाम की 2-2 रकातें होगी। ये एक और बात की है कि इमाम अपनी दूसरी रकात को ज़रा लंबा करेगा कि ये जो पहली वाली है ना कि ये अपनी रकात मुकम्मल कर ली। इसमें बाद लोगों की राय यह है कि इमाम 4 रकात पढ़ेगा और मुक्तदियों के दोनों ग्रोह 2-2 रकातों में इसकी इक्तदा करेंगे। इस सूरत में ये बात खटकती है कि इमाम तो इत्माम करेगा और मुक्तदी कसर करेंगे। ये अजीब बात हो जाती है। बहरहाल उलमा ने इसमें लिखा है, हालांकि कसर की इजाज़त जिस तरह मुक्तदियों के लिए है इस तरह इमाम के लिए भी है। इमाम और मुक्तदी दोनों हालत में बैन ही एक ही तरह के हैं। बाद लोग कहते हैं कि इमाम 2 रकातें अदा करेगा और मुक्तदियों की दोनों ग्रोह इसके पीछे 1-1 रकात अदा करके अपनी नमाज खत्म कर देंगे। इस शक्ल में मुक्तदियों की नमाज सिर्फ 1 रकात होगी, क्योंकि कुरान में मेंशन तो नहीं है ना कि अपनी दूसरी रकात अलग से पढ़ लो। कुरान में तो मेंशन नहीं है ना जो हमने पढ़ा, तो बस उनकी 1 ही रकात उनकी पूरी नमाज है। बाद लोग इसके पीछे गए हैं। ये बात डॉक्टर सरार अहमद ने भी दोहरे तर्जुमा कुरान में बताई है कि उनकी 1 ही रकात काफी है। 1 रकात पढ़ी है। और उसमें उन्होंने इसमें तफसील में ये बताया कि दोनों जो लश्कर है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत से मुस्तफीद हो रही है। मुस्तफीद हो, ये बात तो है, ये बात बाजमात नमाज। अच्छा, इस पे एक चौथी सूरत भी आ जाए है एक वजह से। इस तरह मुक्तदी दोनों में नमाज कामिल तबाह हो गए, नियत के एतबार से भी और ज़ाहिर के एतबार से। दूसरी
اچھا اس میں اور باتیں بھی کوئی فقہ کی باتیں ہیں اس میں فردوں کی قصر تو نہیں ہوگی نا، ہیں؟ 3 فردوں کی قصر تو نہیں، ہاں 3 فرد 3 اس میں تو قصر ہے ہی نہیں نا، لیکن صلاۃ خوف تو وہ بھی ہے، اگر مغرب کی نماز صلاۃ خوف پڑھنی ہوگی تو وہ بھی اسی طرح پڑھیں گے، اس میں بھی شاید 2 ہی پڑھنی پڑیں گی، پھر یہ صلاۃ خوف تو ساری نمازیں ہیں نا، یہ تو پتہ نہیں قصر کا الگ عنوان ہوا نا، یہ تو صلاۃ خوف ہے، صلاۃ خوف اگر مقام پر بھی صلاۃ خوف پڑھی جا سکتی ہے نا، ہمارے بعد میں حملہ ہو جائے تو ہم صلاۃ خوف یہاں پڑھیں گے نا، صلاۃ مقام پر بھی پڑھیں گے تو 4 رکعتیں قصر نہیں ہوگی، تو یہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ علماء نے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ صلاۃ خوف صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں فیضا کن تفیم جب تم موجود ہو تو اس لیے اس سے آج شروع ہے نا کہ جب صرف تم موجود ہو تو یہ کام کرو، تو اس پہ بعض علماء نے کہا کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، لیکن پھر بعض علماء نے کہا نہیں یہ چونکہ حضور اس وقت اب کوئی بھی امام ہوگا صلاۃ خوف پوری زندگی کے لیے ہے، اب بھی پڑھی جا سکتی ہے ایسے نہیں، تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔